channel. Today we will start our lecture number 2nd. We have started in previous lecture exponents and powers. Okay, and in this lecture we will study about laws of exponents and अपन पिछली वीडियो के अंदर ला फर्स्ट एंड ला सेकंड पढ़ चुके थे और अपन अब पढ़ेंगे ला थर्ड. ओके, प्लीज राइट इट केयरफुली. And now we'll start this. Law third. Finding the power of a product of rational number. Finding the power of a product of a rational number. Like in general for all rational numbers x and y. If m is a positive integer, then bracket x multiplied by to the power m, we can write it x to the power m into y to the power m. Okay, this is the law third. Okay, this is, for example, we take ये दोनों को मल्टीप्लाई करेगा 5 to the power 4 3 to the power 4. ओके, ये से जाएगा. ओके, जैसे कि 7a है तो 4 to the 7 to the power 4 and a to the power also 4. और ये जैसे ये है 2 to the power 2 to 5 to the power 2 and 2 to the power 3 to the whole power 2. और जैसे कि 5 to the power 2 into 2 to the power 3 to the whole power 2 equals 25. Yes, multiply to 6 to the power 6. इसके अंदर लो फर्स्ट यूज हो रहा है. ओके, इक्वल 25 इंटू 6 से कितना होता है 25 इंटू जा कितना होगा भाई साहब, कितना होगा, कितना क्या होगा, ये हो जाएगा 64 हो जाएगा. ओके, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास कितना हो जाएगा 1600 हो जाएगा. ओके, दिस इज द आंसर. एंड नाउ वी विल स्टडी अबाउट लॉ फोर्थ. And now we will study about finding quotient powers of the same number for all non-zero rational numbers x and all positive integers m and n. Okay, this is the law number 4th. Okay, this is the law number 4th. अब देखना इसको. फाइंडिंग क्वोशिएंट्स पावर ऑफ द सेम नंबर, ये क्या था लॉ नंबर 4. फाइंडिंग क्वोशिएंट्स पावर ऑफ द सेम नंबर. ओके, एंड फॉर ऑल नॉन-जीरो रेशनल नंबर्स x and all positive integers m and n, if m equals n, then m to the power m x to the power m upon x to the power n equals 1. इसका एग्जांपल देखो, ये रहा. इसका एग्जांपल देखो, ये रहा. दोनों क्या एकदम बिल्कुल सेम है. तो 10 से 10 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 1 1 इक्वल्स 1. वो ये वाला जो लॉ है वो प्रूफ हो चुका. जब इसके अंदर सेकंड देखते हैं, इफ m इज ग्रेटर देन n, इफ m इज ग्रेटर देन n, देन x to the power m upon x to the power n, x to the power m minus n. जैसे कि ये रहा फॉर एग्जांपल 5 कॉमन ले लिया, 12 minus 6. Okay, we get 5 to the power 6. This is the answer. Have you understood? And next question, if m is smaller than n, if m is smaller than n means n is greater than m, then x to the power m upon x to the power n equals 1 upon x to the power n minus m. For example, 5 upon 6, 5 to the power 6, 5 to the power 6 upon 5 to the power 12, we get 1 upon
1 upon 5 to the power ये क्या था n था m 12 minus 6 equals 1 to the power equals 1 to the power 5 to the 1 upon 5 to the power 6। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं ये इसमें क्या है पॉजिटिव अगर ये ऊपर जाएगा मतलब हम इसको चेंज करेंगे इसको फ्रैक्शन नहीं लिखना तो क्या जाएगा माइनस 5 to the power 6 आंसर। Okay, and now we will move forward on law number 5th. And now we will study law number 5th. Finding power of a quotient. Okay. For any rational number x and y where y don't equal y is not equal to 0 and any positive integer n. Like x upon y to the whole power n. अब इसको लिख सकते हैं x to the power n and y to the power n. फॉर एग्जाम्पल ले लेते जैसे कि पहले अपन जीरो एक्सपोनेंट पढ़ लेते हैं वी हैव a टू द पावर 9 अपॉन a टू द पावर 9। ओके, तो अपन फोर्थ वाले से देखे तो a को इक्वल है तो अपन क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। यस, अब अगर अपन इसको माइनस करके देखें तो 9 माइनस 9 इक्वल 0 a टू द पावर 0 और इसके बाद जाएगा a टू द पावर 1 तो a टू द पावर 0 इक्वल्स 1 a टू द पावर 0 इक्वल्स 1 कंप्लीटली 1। Okay, this suggests that we should define a to the power 0 equals 1 a to the power 0 a to the power 0 equals 1 और इसका जाएगा 3 minus 0 equals 1। ओके, और इसका एग्जांपल लेते हैं जैसे कि 2 upon 5 to the power 4 equals 2 to the power 4 and 5 to the power 4। ओके ओके, and now we move forward and now we will learn about scientific notation and now we will study about scientific notation। oh my god इतना बड़ा नंबर। अब इसको अपन शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसलिए तो साइंटिस्ट ने बनाया है मैथमेटिशियन ने बनाया है साइंटिफिक नोटेशन बनाया है। ओके, जैसे कि सन से अपन से लेके सन से लेके कितनी दूरी है बहुत दूरी है भाई साहब। अब उसको किसमें लिखना है साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। इसके अपने पास ये नंबर है अब इसको साइंटिफिक नोटेशन के अंदर कैसे लिखें। ओके, जैसे कितने जीरोस है मींस अपन को क्या लगाना है डेसिमल भी लगाना है इसमें क्या लगाना है डेसिमल भी लगाना है तो अपन इसके अंदर डेसिमल लगाएंगे सेकंड साइड से सेकंड प्लेस पे मींस यहाँ पे लगाएंगे फर्स्ट सेकंड पर 1 मींस इस लेफ्ट साइड से 9 और 4 के बीच में क्या लगेगा डेसिमल लगेगा और डेसिमल के लेके जितने पहले है ना वो किसकी पावर में जाएंगे 10 की पावर में जाएंगे। जैसे कि 9.46 इनटू कितनी की पावर में जाएंगे कितने डेसिमल से लेंगे कितने प्लेसेस है भाई 17 प्लेसेस 10 to the power 17। This is the scientific notation। This is the scientific notation। And now we will discuss about in the standard form of scientific notation। मीन्स अपने शॉर्ट फॉर्म तो लिख तो दिए अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर बदलना तो आना चाहिए ना अपनों को तो अब वो सीखेंगे। जैसे कि अपन ने कोई दो एग्जांपल ले लिए स्टैंडर्ड फॉर्म को समझने के लिए। जैसे ये एग्जांपल है 1.52 into 10 to the power 8। ओके, तो 10 to the power 8 मींस दो जीरोस तो डेसिमल को उठाने के लिए काम आ जाएंगी। यस और नो? यस, तो 10 to the power 6 कितनी जीरो हो जाए 10 to the power 6 मींस दो जीरोस तो इसको उठाने के काम है तो 10 152 into 10 to the power 6 we get 1 2 3 1 2 3। okay, we get this is the standard form of 1.52 और ये कितने हैं 10 to the power 10। okay, अपन कहाँ से काम कर रहे थे इसके अंदर डेसिमल से काम करते हो। मैंने ये भी सही बताया और मैंने देखा ये भी सही बताओ। जैसे ये मैंने यहाँ से काम कर रहे हैं कितने डेसिमल प्लेस में कितने डिजिट होने चाहिए 10। जैसे ये डेसिमल के ऊपर उठाऊंगा ना तो कितने जीरोस कहाँ आ जाएंगे 2 जीरोस तो अब कितना डिजिट लिखना पड़ेगा मेरे को 8 लिखना पड़ेगा 9 4 6 1 2 3 4 5 1 मिनट वेट 1 मिनट
1 2 3 4 5 6 7 8 तो 1 2 3 ओके वी गेट दिस। और ये हमेशा किस में होता है? इंटरनेशनल सिस्टम में होता है। ओके हमेशा किस में होता है? इंटरनेशनल सिस्टम में ही होता है। This is for class 7th and 8th. Okay, and this is the lecture number 2. Thank you for watching the video and the lecture also. And please like, share, and subscribe to our channel. Please subscribe to our channel and like it and share. ज़्यादा इसको शेयर करो कि जो बच्चे हैं जो 6th 7th 8th क्लास के उनको शेयर करो कि वो मेरा जो SSAM-IIT जो चैनल है उसका मीन्स उसे पढ़ सके। ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।